So today we are going to start with a new chapter, Private, Public and Global Enterprises. The learning objectives of this chapter would be, we would come to know about the various forms of business organizations which exist in the public sector. All of you know what is the public sector, where the enterprises are owned, managed and controlled by the government. So we have read about private sector already in the previous chapter. We know in the private sector, if you want to start with the business, you can have different forms of business organization like sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, or even a joint stock company. Now, if the government sector wants to own an enterprise, set up an enterprise, and we know that in India, India being a mixed economy, public sector has been very dominant from 1950 to 1990, right? So what are the different forms in which our government can set up its enterprises? So basically, there are three different forms, which are departmental undertakings, statutory corporations, and government companies. So in this chapter, we are going to discuss about their meaning, about their features. Then we will be critically evaluate them. That is, we will be discussing its merits and limitations. So next in this chapter is the examining the changing role of public sector. Like I told you, till 1990, public sector played a very important role, dominant role, primary role in case of industrialization was being played by the public sector of our country. But in after 1990, the role of public sector changed from primary to secondary. So we are going to discuss what happened, why it happened, and what were its consequences in this chapter. And then there are features of global enterprises and the benefits of joint ventures, which though in this year is not in our syllabus, but by the time CBSE is sending us syllabus, we will come to know ye hame karna hai ki nahi. By that time, we are going to start with the chapter. Yesterday, we read about this story kind of thing given in the box, that Anita, who is a student of class 11, she's reading some newspapers. And in these newspapers, there are certain headlines like government plans to disinvest its shares in few companies. Okay. Another day when she's in news, she's reading news, again there is a, news, another news that one public sector is incurring heavy losses and there is a proposal from the government to close the same enterprise. Then she read another item in the newspaper that under private sector, some of the companies are doing very well. They are earning good profits. So by reading all these, she became curious because all these are new terms for her. Disinvest, right? Public sector. So all these are new terms for her. And she is curious to know what are the meaning of these terms. She also realized that in some areas, there was only the government which operates, like railway. ठीक है, अगर आप रेलवे में सफर करते हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप अगर कोई मोबाइल लेते हो, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरे ब्रांड का मोबाइल ले लेते हो. ठीक है, आप नेटवर्क लेते हो, कनेक्शन लेते हो किसी भी मोबाइल का, आप नहीं सेटिस्फाइड हो, आप बंद करा के दूसरा कंपनी का कनेक्शन ले लेते हो. लेकिन अगर आप रेलवे में जर्नी करते हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेलवे सर्विसेज, यू हैव नो अदर ऑप्शन. आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवे में ही जाना पड़ेगा.
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेलवे की मोनोपोली है, रेलवे ही सॉरी गवर्नमेंट की मोनोपोली है और गवर्नमेंट ही रेलवे को ऑपरेट करती है. Then she came to know that there are certain areas where private and government sector both coexist, both are operating, they are running their businesses. For example, in a heavy industry sector में एक कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. अनदर कंपनी है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. And then there is TISCO. You know what is TISCO? Anyone knows the full form of TISCO? It is Tata Iron and Steel Company. Then there is Reliance. Then there is Birla. ठीक है, ये सब हेवी इंडस्ट्रीज में है, जिनमें से सेल और भेल जो है वो पब्लिकली ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, whereas TISCO and Reliance, these are privately owned enterprises. Similarly, in the telecom sector, there is Tata, there is Reliance, there is Airtel, ठीक है, and there is MTNL and BSNL. ठीक है, तो जिसमें से टाटा, रिलायंस, एयरटेल, these are privately owned, whereas MTNL and BSNL, these are government owned enterprises. Then in airlines, there used to be a time when only Air India and Indian Airlines used to be two airline operators. But now Indian Airlines has been closed down. That was government owned. Air India is government owned. But along with Air India, now there are many private players in airline sector like Sahara, Jet, Indigo, ठीक है, स्पाइस, बहुत ज्यादा, टाटा, ये सब ने अपनी एंट्री गेन कर ली है एयरलाइन सेक्टर में, राइट. सो देन शी ऑल्सो वंडर्ड कि ये जो कंपनीज हैं जैसे कि कोका कोला है, पेप्सी है, हुंडई है, ये कहाँ से आई है? ये क्या इंडिया में शुरू से थी? क्या ये इंडिया में ही ऑपरेट कर रही हैं या ये बाकी कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रही हैं? ठीक है. And in order to answer all these questions, she can get her answers from this chapter. Okay, so we are, you being the student of commerce also have such kind of questions. So in order to satisfy your answers, we are going through this chapter. In this chapter, as I told you, we are going to study about various forms of organizing public sector enterprises. ठीक है, तो बेटे जब गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट करना है इकोनॉमिक सेक्टर्स में, तो इसको भी किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क चाहिए ही चाहिए. इट नीड्स सम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू फंक्शन. So as we have studied that in the private sector there are different forms of organization which are sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society, and joint stock company. So, in the public sector, there are basically three different forms of organizing business. One, departmental undertakings. Second, statutory corporation. And third one is government companies. Right? Departmental undertakings, statutory corporation, and government companies. Okay, so we are going to discuss about all these. First, coming to the departmental undertakings. बेटे departmental undertakings जो हैं ये सबसे oldest और traditional फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ऑर्गेनाइज करने का, which means when we got independence, when we established our economic system as mixed economic pattern, at that time whatever public sector enterprises came into existence, came into being,
they were established as departmental undertakings. तो ये ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का. Here the enterprises are established as the departments of the ministry. तो इनिशियली बेटे 1950 में जब हमें इंडिपेंडेंस, जब हमने इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स पैटर्न अडॉप्ट किया और हमने ये रियलाइज किया कि अपनी इकोनॉमी जो डिवास्टेटेड हुई पड़ी है, जिसको जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो वो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, उसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल नहीं थी उस टाइम पे. इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, रिच पीपल की जो प्रपोर्शन थी वो बहुत ही कम थी. तो इसीलिए गवर्नमेंट को एंटर करना पड़ना था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए. तो सबसे पहले काम जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने देखा कि जो जो उसको जिस एरिया में एंटर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट ने उस एरिया का एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया अपनी मिनिस्ट्री के अंडर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडिया. दिस इज अ पार्ट ऑफ द दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, रेलवे डिपार्टमेंट. सिमिलरली पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बेटे उस टाइम पे हमारे पास कम्युनिकेशन का एक ही जरिया होता था, दैट वाज पोस्ट एंड टेलीग्राफ. Telephones were kind of non-existent at that very time. So India being a vast country and लोगों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका पोस्ट एंड टेलीग्राफ ही होता था. So again it was very very important economic activity. So गवर्नमेंट ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया. ठीक है, so those enterprises which are established as the department of the ministry and these are considered as the part or the extension of the ministry itself. इनको गवर्नमेंट का एक पार्ट माना जाता था और मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन ही माना जाता था. That's why these enterprises came to be known as departmental enterprises. Why? Because these are established as departments of the ministry. ये मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट माने जाते थे, तो इसीलिए these are is considered as a part or an extension of ministry itself. मिनिस्ट्री का ही एक ये हिस्सा है. ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है वो इन डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू फंक्शन करती है. ठीक है, एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. जो ये काम करती हैं, जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं एंटरप्राइजेस, वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है. आप अपने आप को देखो, अगर कभी रेलवे का एक्सीडेंट होता है, इमीडिएटली you hold government responsible for it. Why? Because this is performed, जो रेलवे है, it is considered as the department of the ministry. ये मिनिस्ट्री का हिस्सा है, तो अगर रेलवे से कुछ गलत होता है बेटे, तो ऐसा माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है. ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है. ये जो एंटरप्राइजेस हैं, these are not constituted as autonomous or independent institutions. ये autonomous का मतलब होता है independent. ठीक है, अगर आपके पास बुक्स हैं, you need to write it down. Autonomous means independent. इन enterprises को autonomous नहीं माना जाता. ये बेटे मिनिस्ट्री का हिस्सा है, ये इसको ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है, दीज आर नॉट प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, इनका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है इनकी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज. ये इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज
नहीं है। ठीक है, अब इनको कौन ओन तो गवर्नमेंट करती है, तो कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है बेटे, दीज एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं, और इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं दीज आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। रेलवे में या पोस्ट एंड टेलीग्राफ में जितने भी एम्प्लॉइज हैं these are considered as government employees. So these undertakings may be under the central or the state government. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है, जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल दीज आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो बेटे ये जो एंटरप्राइजेस हैं इनकी एग्जांपल जनरली हम यही दो देते हैं, इज रेलवे एंड अनदर इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तीसरा एक डिफेंस भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, सो बिफोर डिस्कसिंग इट्स फीचर्स लेट मी टेल यू वन थिंग, वेयर आर दीज अंडरटेकिंग्स सूटेबल। अब क्योंकि इसके अलावा और भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा, अभी उसके बारे में डिस्कस करना बाकी है, बट so far you know that government can set up its enterprises in the form of departmental undertakings, in the form of statutory corporations, or in the form of government companies. So again government has to make a choice कि let us say government को कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट खोलना है या कार मेकिंग एंटरप्राइज खोलना है, तो इसके लिए क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है, या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह वो सेटअप करे, या इसको गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करे। तो बेटे उसके लिए हमें सूटेबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वहां पर सूटेबल है वेयर देयर इज where the complete control of government is necessary, जहां पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन अगेन वेयर utmost secrecy plays a vital role, जहां पे हमें लगता है हमें चीजें सीक्रेट रखने की जरूरत है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है। ठीक है, ये चीजें ऐसी है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, तो इसीलिए इनको हम एज ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। देन वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बेटे रेलवे में देखो कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको अपना एक डिपार्टमेंट की तरह क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह शिप बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट है। ठीक है, देन व्हेन द अंडरटेकिंग इज टू बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है, रेवेन्यू समझते हो, इनकम की जरूरत है, और क्योंकि बेटे इन एंटरप्राइजेस से जितना भी रेवेन्यू अर्न होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। ठीक है, तो अगर एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने कोई फॉर्म सेटअप करनी है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यू शुड डू। ठीक है, तो वेयर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मस्ट, वेयर सीक्रेसी इज ऑफ utmost importance, वेयर वी require heavy investment to be made, and where it is to act as a source of revenue, departmental undertaking should be set up. ठीक है, let us discuss the features of these departmental undertakings. बेटे आपकी एनसीईआरटी की बुक में फीचर्स पॉइंट्स में गिवन है, लेकिन इनकी हेडिंग्स मिसिंग है, तो आप इनकी हेडिंग्स अपने आप बना लीजिए। उससे क्या होगा, जब आपको फीचर्स वगैरह आएंगे एग्जाम्स में, आप विद हेडिंग देंगे तो यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स।
ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसके। तो सबसे पहला फीचर जो है बेटे फंडिंग, यू कैन राइट इट डाउन, फंडिंग। The funding of these undertakings come directly from the government treasury. अब रेलवे है, जैसे रेलवे के लिए जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आते हैं। ट्रेजरी समझते हो, गवर्नमेंट का खजाना, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू अर्न करके रखा है या गवर्नमेंट के जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, उससे गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है, अगर हमने रेलवे को मॉडर्नाइज करना है, इफ यू हैव नोटिस्ड, आप देखो जैसे रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यहाँ ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स की बोगीज हैं या रेलवे ट्रैक हैं, ठीक है, इनको टाइम टू टाइम मॉडर्नाइज करने की जरूरत पड़ती है, रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। नई नई ट्रेनें गवर्नमेंट निकालती है, आप देखते होंगे गवर्नमेंट जब बजट अनाउंस करती है तो रेलवे का बजट एक सेपरेट डे आता है। मतलब गवर्नमेंट जो रेलवे है हमारी कंट्री की, वो इतनी वास्ट एंटरप्राइज है कि उसको हम बाकी कंट्री के बजट के बीच में उसके बारे में उसका बजट नहीं देते हैं, ठीक है। वी कीप अ सेपरेट डे, वी मेक अ सेपरेट बजट जस्ट फॉर रेलवे। बजट क्या होता है? बजट में ये लिखा होता है कि आपको आने वाले साल में कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू अर्न होना है और आपने उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, और जो डिफरेंस है यहाँ तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। अगर सरप्लस है तो वो उसको हम प्रॉफिट का नाम नहीं देते, सरप्लस ही कह देते हैं, सरप्लस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट होता है ना बेटे, प्रॉफिट मीन्स डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, we do not call it profit. Can you tell me why we do not call it profit? You must have done non-profit organizations. किया आपने बेटे +1 में अकाउंट्स में non-profit organizations? Yes, Megha. Megha is there in the class, or Mansi? Okay, you tell me. Kinjal, बेटे non-profit organizations किया आपने? No, ma'am. Okay, so can you answer this question? Why the surplus of public sector enterprises is not called as profit? It is given the name of surplus only. Anyone? Okay, beta, the main purpose of government enterprises is social welfare. जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हम सेटअप करते हैं उनका मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब सोशल वेलफेयर को भी बढ़ाने के लिए एंटरप्राइजेस को रन तो सक्सेसफुली करना पड़ेगा, तो अगर उसका सरप्लस होता है उसको चाहे गवर्नमेंट यूज करे लोगों के वेलफेयर के ऊपर ही, लेकिन उसको वो प्रॉफिट का नाम नहीं देती है, ये सोचते हुए कि हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसको सरप्लस कहा जाता है। तो बेटे बात हो रही थी फंडिंग की। अब रेलवे लेटर से कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, हमने कहा हमारे स्टेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हम ऐसे करते हैं स्टेशन के को कुछ मॉडर्नाइज कर लेते हैं, जहाँ पे रिपेयर की जरूरत है, रेलवे ट्रैक्स के रिपेयर की जरूरत है, उसको रिपेयर करवा लेते हैं क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही हैं। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आएगा, ठीक है। These are an annual appropriation from the budget of the government. गवर्नमेंट अपने बजट में से रेलवे को या जो भी उसका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको जो भी फंड्स की जरूरत है उसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट से करती है। तो अगर इसको पैसा जो खर्चा है फंड्स हैं वो अगर गवर्नमेंट देती है, तो जितना रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं, ये एंटरप्राइजेस अर्न करते हैं, वो रेवेन्यू भी कहाँ जाना चाहिए?
अगर आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं खर्चने के लिए, आपकी सारी फीस लगा रहे हैं, कल को अगर आप कुछ पैसे कमाते हो, शुड यू गिव इट टू योर पेरेंट्स और नॉट इफ दे नीड इट? ठीक है, सो यस, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑल्सो इज पेड इनटू द ट्रेजरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटे फर्स्ट फीचर फंडिंग का। यू शुड राइट इट डाउन, इसकी हेडिंग्स जो है आपने साथ साथ लिख लेनी है। ठीक है, तो पहला फीचर है फंडिंग। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, इनके जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आते हैं। ठीक है, और जो इनका रेवेन्यू अर्न होता है दैट इज ऑल्सो पेड इनटू द गवर्नमेंट्स ट्रेजरी। राइट, नाउ कमिंग टू द सेकंड फीचर, these are subject to accounting and audit controls applicable to other government activities। तो बेटे आप इसकी हेडिंग दे दीजिए ऑडिट, ऑडिटिंग कंट्रोल लिख लो या सिंपली ऑडिट भी लिख लो। सो बेटे जिस तरह से बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज की ऑडिटिंग होती है, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग? बेटे जब कोई भी एंटरप्राइज अकाउंट्स मेंटेन करती है, ठीक है, उस अकाउंट्स को जब हम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई जो है एक अलग पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी करती है, क्योंकि हो सकता है वो जब आपने अकाउंट्स बनाए उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो गई, आपने अपने प्रॉफिट कम शो करने के लिए खर्चे ज्यादा शो कर दिए, तो अगर आपने ऐसा किया है तो वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो same may happen in case of government activities. People may use for their vested interest may appropriate government funds। ठीक है, जो गवर्नमेंट के फंड्स आए वो अपनी पॉकेट में डाल लिए, और जो जिस पर्पस के लिए फंड्स आए उसको जैसे सीमेंट लेना है, कोई और आयरन एंड स्टील लेना है, वो आया 1 करोड़ रुपए का, आपने 2 करोड़ रुपए का शो कर दिया और 1 करोड़ अपनी पॉकेट में डाल लिया। ठीक है, तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप अपने अकाउंट में मैनिपुलेशन कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए ऑडिटिंग होना जरूरी है। ओके बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।